السلام علیکم، JNN کے ساتھ میں ہوں حماد الحسن عباسی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فواد چودھری نے کہا ہے استعفوں کے نہیں، اب اصلاحات کی سیاست ہوگی۔ PDM ختم ہو چکی، عوام ان کی دینگا مشتی دیکھ رہے ہیں، تمام جماعتوں سے الگ الگ رابطے کریں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے پہلے ہی الیکشن اصلاحات کی بات کی تھی۔ سینٹ الیکشن کا جس طرح مذاق بنا سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن وزیراعظم کی بات مانتی تو آج ان کا مذاق نہ بنتا۔ انتخابی اصلاحات کی پیشکش پر نون لیگ آگے نہیں بڑھی۔ ہماری نظر میں PDM ختم ہو چکی، اب تمام جماعتوں سے الگ الگ رابطہ کریں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو باپ کے لوگوں نے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا۔ مریم نواز نے کہا افسوس ہے پیپل پارٹی نے جھوٹے سے عہدے کے لیے جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ لیگی نائب صدر کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اگر یہ عہدہ چاہیے تھا تو آپ نواز شریف سے بات کر لیتے، وہ آپ کو ووٹ دے دیتے۔ پیپل پارٹی کا نام لیے بغیر مریم نواز کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صف بندی ہو چکی، ایک طرف عوام اور آئین کے لیے قربانیاں دینے والے، جبکہ دوسری طرف چھوٹے سے فائدے کے لیے جمہوری روایات کو روندنے والے کھڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے درخواست ہے ذرا سا پانی پی لیں، حوصلہ رکھیں، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ نہیں جانتا ایک جماعت اتنا سخت فیصلہ کیسے کر رہی ہے۔ ہماری جماعت کے کچھ اراکین کو محسوس ہوا کہ پیپل پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ نون لیگی دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، نہیں چاہتے کہ PDM کو کوئی نقصان ہو۔ بلاول بھٹو بولے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ مریم نواز سمیت دیگر لوگ پیپل پارٹی کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے پر تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا۔ ان پر ضمنی الیکشن اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا الزام تھا۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ رہائی کے بعد سب سے پہلے اپنے کارکنان سے ملاقات کروں گا۔ یاد رہے کہ حلیم عادل شیخ کو کراچی میں ہونے والے ضمنی الیکشن اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر پارٹی PDM کے سربراہی اجلاس میں معاملہ اٹھائے۔ حمزہ شہباز کو پیپلز پارٹی کے معاملے پر بیان بازی سے بھی روک دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے شہباز شریف سے اہل خانہ کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی، جس میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے منتخب ہونے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ حمزہ شہباز نے یوسف رضا گیلانی کو ایوان بالا میں قائد حزب اختلاف بنانے جانے پر مسلم لیگ نون میں پائی جانے والی بے چینی سے آگاہ کیا۔ اور وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پیپل پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو دیا گیا داغ مفارقت کا زخم ہے، ابھی تازہ ہے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مفاہمتی سیاست پر نانی نے نون لیگ کے ساتھ شریک داری کو توڑ کر نون لیگ کی ہوش اڑا دی ہے۔ اس جدائی کی چیخ و پکار اب لیگی ترجمانوں کے بیانات کی صورت میں عوام کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ شاہد حقان عباسی نے بیگ جنبش کلم شریف خاندان کو نوازنے کے لیے 20 ارب کی سبسڈی کا فرمان جاری کیا۔ ادھر خواجہ آصف نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن اور FBI کے پاس اثاثوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں، ضمانت بعد از گرفتاری دی جائے۔ نون لیگی رہنما کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ نیب نے آمدن سے زائد اثاثات میں اور منی لانڈری میں 29 دسمبر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا، لیکن نیب نے انکوائری کی شکایات کنندہ کا کوئی ریکارڈ بھی احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نیب کو کیس کا ریکارڈ پہلے ہی فراہم کر چکا ہوں۔ احتساب عدالت کے جج نے بھی نیب کے پاس تمام متعلقہ ریکارڈ ہونے کی آبزرویشن دی، لہذا عدالت بعد گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرے۔ نیب کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کے خلاف رانا ثناء اللہ کی درخواست سے ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 31 مارچ کو سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ لیگی رہنما کا کیس سنے گا۔ درخواست میں رانا ثناء اللہ نے موقف اختیار کیا کہ نیب کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کرنا غیر قانونی ہے، عدالت اقدام کو کالعدم قرار دے۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے بینچ کی عدم دستیابی کے بعد کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا تھا۔ کچھ ذکر کرونا کا تو کورونا کی صورتحال کے سبب سندھ کے تمام درسگاہیں 10 دن کے لیے بند کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت لال شہباز کلندر کا سالانہ عرس مبارک بھی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلہ محکمہ اوقاف کے صوبائی وزیر سہیل انور سیال کی زیر صدارت ڈیپٹی کمشنر آفس جامشورو میں منعقد ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ملک میں کورونا کی تیسری لہر میں مسلسل اضافے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ کلندر لال شہباز کی درگاہ کو 10 دن کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ اس سال کلندر لال شہباز کا عرس مبارک بھی نہیں ہوگا۔
प्लाट पर कब्जे की कोशिश करने पर मंशा बम के चारों बेटे गिरफ्तार, मंशा बम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने प्लाट पर कब्जे की कोशिश करने पर मंशा बम के चारों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने शहर से गन पॉइंट पर सोने की चेन और नकदी भी छीनी थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आए, सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही और होल सेलर ही चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। महकमे खुराक पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद जारी किए गए मैनेजमेंट ऑर्डर के मुताबिक शुगर मिलों और डीलरों के गोदामों की रजिस्ट्रेशन होगी। चीनी की किल्लत होने पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को चीनी की फरोख्त के मुकम्मल इख्तियार होगा। स्टॉक कम होने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह करना लाजिम होगा। फैक्ट्रियां गैर रजिस्टर्ड डीलर, होल सेलर और ब्रोकर को चीनी फरोख्त नहीं कर सकेंगी। उधर म्यांमार में आमरीत के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 90 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। म्यांमार के जर्नलों की जानिब से मुसल्लह अफवाज का दिन मनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने वाले हजूम पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से कम 90 अफराद हलाक हुए, जबकि हलाकतें बढ़ने का खदशा है। और होटल एसोसिएशन इस्लामाबाद के ज़रिए एहतमाम अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरे में रेस्टोरेंट मालिकान, मुलाजमीन और ख़वातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत जुमे और हफ्ते को होटल खोलने की इजाज़त दे, होटल बंद करके मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए, हुकूमत SOPs पे तहत कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक आखिरी हद तक जाएंगे। और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बसंत पर हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद पुलिस ने बसंत पर हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम अब्दुर्रहमान को वीडियो की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ के जरिए मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी का अमल जारी रखा जाएगा। थाना कैंट पुलिस रावलपिंडी की कार्रवाइयाँ मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, स्नैचिंग और गाड़ियों की टेम्परिंग में मुलविस बैनुल इज़लाही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से कारें, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना अब्दुल जब्बार और 3 साथी ज़ियाउर रहमान, हनीफ खान, अदनान खान शामिल हैं। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में चोरी शुदा 9 अदद कारें, 8 अदद मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 2 पिस्तौल बमा एमिनेशन बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान रावलपिंडी के अलावा दीगर अजला में भी वारदातों का इंकशाफ किया है। और बहावलपुर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस बहावलपुर के मुताबिक 2 मुलजिमान मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DC ऑफिस हंगू में पोलियो मुहिम का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह शाह ने बच्चे को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। DC हंगू हमीदुल्लाह शाह ने कहा कि हमारा मकसद पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना है। पोलियो के 2 कतरे बच्चों के लिए अब हयात हैं। ये बच्चों को ज़रूर पिलाएं और अपने बच्चों को माजूरी और माशरे पर बोझ बनने से बचाएं। रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए घर घर पोलियो के कतरे पहुँचा रहे हैं। आवाम और वालिदैन भरपूर ताउन करें ताकि पोलियो का खात्मा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारों को बहाल करने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के बल्दियाती नुमाइंदों ने चार्ज संभाल लिए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के बहाल होने पर हामियों की डोल की थाप पर भंगड़े। इस मौके पर खानपुर, फिरोजवाला और जलालपुर के बल्दियाती इदारों के आला अफसरान का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर आवाम की खिदमत का मौका मिला है। बल्दियाती इदारे बहाल होने से आवाम की हम तक डायरेक्ट रसाई होगी, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। खबर है जलालपुर पीरवाला से, जहां पर हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसलें मुतासिर हो गईं। काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हुकूमत से गंदम की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ किसानों को खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा करने लगे। मज़ीद जानते हैं JNA न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ लांग से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में हालिया बारिशों की वजह से जो गंदम की फसल है वो शदीद मुतासर हुई है। काश्तकार हजरात की जो है वो कमर टूट चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मिसाली काश्तकार मलिक अहमद अली और फकोड़ा लांग साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिशों की वजह से कणक बहुत ढह गए, उस तो बहुत घट हैं और जट्टे की कमर टुट गए सही। इन खातिर से खादा और तेल भी सस्ता थिया वञे। सिंध वाला रेट पंजाब का भी मिलिया वञे सही। अस अपील करते हैं वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को जे रेट सिंध वाला पंजाब वाला बराबर थिया वञे और खादा भी रेट सस्ते थे वञे सही। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी
बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बल्दियाती इदारों की बहाल होते ही शेखोपुरा की तमाम यूसी के चेयरमैन भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। मिठाई तकसीम करने और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं JN न्यूज़ के नुमाइंदा अजमत अली। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद बल्दियाती निज़ाम की बहाली के बाद शेखपुरा में भी चेयरमैनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अभी मैं हमारे साथ मौजूद हैं UC 53 के चेयरमैन सुल्तान सरवर गोल्डन साहब। उनसे बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसके बाद वो कितना खुश है और आवाम की खिदमत के लिए वो कितना पुरजोश है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है बल्दियाती अदारों के हवाले से, वो बिल्कुल मेरिट पे है और वो हक और सच की फतह है। और इंशाल्लाह अब जो हमें मौका मिला है, जो 9 माह बाकी रहते हैं, जो 22 माह हमारे इस गवर्नमेंट ने ज़ाया किए हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस 9 माह में हम दिन रात एक करके वो कसर निकाल देंगे और आवाम को उनकी दहलीज तक इंसाफ पहुँचाएँगे हम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया वो बहुत खुशाइन है, हक और सच की जीत भी है। मज़ीद इनका ये कहना है जो हमारे अख्तियारात 9 माह रह चुके हैं वो अव्वलीन तरजीह यही होगी कि आवाम की खिदमत और आवाम को इंसाफ उसकी दहलीज तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते चलें कसूर से, जिसके नवाही गांव कोट राधा किशन में लीगी चेयरमैन की गुंडागर्दी, मुखालिफिन के घर पर दावा बोल दिया, पुलिस बेबसी की तस्वीर बड़ी नजर आने लगी। लीगी चेयरमैन इमरान प्रकाश ने डंडू सोटों के वार करके 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी कर दिए। जख्मी अफराद को अहले इलाका ने THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और मसीहाई के बजाय कौम पर गेम खेलने में मशगूल, कसूर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स मरीज चेक करने की बजाय गेम खेलते रहे। मरीज परेशान कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। मरीज रुल गए। ड्यूटी टाइम के दौरान डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज कैसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मरीज ने तंग आकर डॉक्टर से चेक करने का कहा तो डॉक्टर ने चेक करने से इनकार कर दिया। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिनाना खुद CIA पुलिस के थाना सबगड़ा की हदूद में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 150 लीटर तैयारशुदा शराब, 20 किलो पोस्ट, चालू बट्टी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिमान मुबशर अमीन को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजिम साजिद और साजू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाबंद सलासल कर लिया। उधर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावरपुर ने कहा है कि पुलिस आवाम की जान माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही है। इस फरीजे की अदायगी में रोज़ अफजों बेहतरी का सिलसिला जारी है। RPO मोहम्मद ज़ुबैर दरशेक ने सर्कल अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ थानों का दौरा करते हुए पुलिस एहलकारों को हिदायत की कि कोरोना SOP पर न सिर्फ खुद अमल दरामद करें बल्कि हवालात में कैद मुलजिमान से भी अमल दरामद करवाएं। ब्रेक्स, हवालात, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। जराशीम को स्प्रे भी करवाएं। हफ्तावार छुट्टी न होने के बायस पुलिस अफसरान और हलकारान अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव में भी इजाफा हो जाता है। 8 साल बच्ची ज़किया बीबी कत्ल का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी, बहावलपुर अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम को 2 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम इमरान पर अगवा के बाद रेप का जुर्म साबित होने पर सेक्शन 302 के तहत 2 मरतबा सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि मुलजिम को जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में 6 माह कैद भी भुगतना होगी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया में मुब्तला मरीजों को खून की फराहमी ताअत्तुल का शिकार है। मरीजों को खून की अदम दस्तियाबी पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मर्ज का शिकार मासूम बच्चे ज़िंदगी के लिए सुसकने लगे। थैलेसीमिया ऐसा मर्ज है जिसका शिकार मरीज जिंदा रहते हुए ज़िंदगी को तरसने लगता है। इस मर्ज का शिकार बच्चों की ज़िंदगी का इन्हिसार मुसलसल खून की फराहमी पर होता है, और अगर इन्हें बर वक्त खून की फराहमी मुमकिन न बनाई जाए तो इनकी चलती सांसें थमने लगती हैं। सरगोदा में कोरोना लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता बरस से ये सिलसिला ताअत्तुल का शिकार है और डोनर हजरात से इस संगीन मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे। और आखिर में आपको बताते हैं कि सिंध के तमाम इदारों के मुलाजमीन की दौड़ में मुश्तरका मीटिंग में 17 तंजीमों ने शिरकत की। मीटिंग में एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के क़याम मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद देखते हैं JN न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद सलीम आराई की ये रिपोर्ट। मेरा नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। मैं ऑल सिंध टेक्निकल एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन मरकज़ी सदर हूँ। आज हमारा यहाँ शामिल होने का मकसद ये है कि ये आगे का एक ग्रैंड अलायंस बना है एम्प्लॉइज़ के ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए। यहाँ सिंध भर की 18 से 20 तंजीमें शामिल हुई हैं। कमर मरी
आबदार एंड कैनाल एसोसिएशन जो मरकज़ी सूबाई सदर, जीअं त ही हिकिड़ो दोस्तनि जो ऐं जेके बि तंज़ीमूं या उन में एसोसिएशन आहिनि, फेडरेशन आहिनि या जेके बि तंज़ीमूं आहिनि, उहे अॼु हिकिड़ो ग्रैंड अलाउंस ठहियो आहे। जेके बि हिते 17 जमायतूं गॾियूं आहियूं पाण में, उन्हनि जा मुतालबा तक़रीबन पाण में हिकु जहिड़ा ई आहे। उन्हनि में जीअं टाइम स्केल आहे, ग्रुप इंश्योरेंस आहे, प्रोमोशन्स जो मसइलो आहे, या उनखां ॿियो जेको सर्विस ट्रैक में प्रॉब्लम्स आहिनि या जेके असांजा जिनियन प्रॉब्लम्स आहिनि, उन्हनि जे लाइ असां 17 जमायतुनि सिंध जे अंदरि अगेगास जो हिकिड़ो अॼु हिकिड़ो पाण में इतिहाद क़ाइमु कयो आहे। ही गॾजण जो मक़सदु ई इहो आहे त सिंध गवर्नमेंट जा जेके मुलाज़िमनि सभई गॾिजी हिकु ताक़त थी असां पंहिंजा हक़ वठूं। हमने रायमल जोड़ा है कि पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के मैं सूबाई तर्जमान पे हैसियत आज इस मीटिंग को अटेंड किया है। ये सिंध गवर्नमेंट ऑल एम्प्लॉयज़र एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आज का इजलास जो हमारे दौड़ में नवाबशाह में हुआ, उसके लिए आज हमने ये इत्तेहाद ने एक मिलजुल कर ये ऐलान किया है कि हम सिंध गवर्नमेंट से जो 25% एडहॉक रिलीफ वफाक दे रहा है, बाकी सूबों के अंदर भी हमारे पैरामेडिकल और दूसरे तंजीमों के दोस्त एहतजाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिंध के अंदर भी हम भरपूर एहतजाज तहरीक लेकर आ रहे हैं। असांजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेचैनी आहे, अपग्रेडेशन ऐं पघार ऑनलाइन, सन कोटा, डीज़ल कोटा ऐं हाउसिंग सोसाइटी, असां सभु दोस्तनि सां गॾु आहियूं जेके बि असांजा तंज़ीम आहिनि। इंशाअल्लाह ताला असां जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुलाज़िमनि जी बेचैनी ख़त्म। और JNN से फिलवत के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।